Good morning, class. Today we'll start with our fourth chapter, Set Our Children Free. This speech is a powerful argument made by the Nobel Prize winner Kailash Satyarthi. It opens our eyes and draws our attention towards the fictitious conditions of some of our fellow human beings, here children. The chapter we are about to discuss here is a speech by great personality Kailash Satyarthi. He tries to move our attention towards the pity the children. We should just pity उन बच्चों के ऊपर जिसके ऊपर हमें तरस खाना चाहिए. Your Majesties, Your Royal Majesties, Royal Highness, my dear daughter Malala, dear brother Tom Harkin, and my sisters and brothers, friends, the Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. Respectfully, I am unable to do that because I am representing here the sound of silence, the cry of innocence, and the face of invisibility. I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. I have come here only to share the voices and dreams of our children because they are all our children. In this chapter, here the author tries to pay our attention towards those children, those who are left behind in our society. Here the author tries to say that he is being called here, उसे यहाँ बुलाया गया है किसके लिए? एक जनरस स्पीच देनी है. किसके लिए? बच्चों के लिए. लेकिन आज यहाँ पर ये ऑथर क्या है? बिल्कुल अपने आप को इनकेपेबल फील कर रहा है. कहता है मैं उन बच्चों के लिए क्या स्पीच दूँ जिनको हमने सोसाइटी ने पीछे छोड़ दिया है. वी हार्डली केयर फॉर दोज चिल्ड्रन. देयर आर मेनी सच चिल्ड्रन. दे आर still working as child labor. Their number of children, they are orphan. So here we are here concerned for the attention. यहाँ पर जो ऑथर है वो हमें इस बात को कहता है, समझाता है कि हमारा कंसर्न कहाँ पे है? इन बच्चों के प्रति जो समाज में पीछे रह गए हैं. 20 years ago, in the foothills of Himalayas, I met a small skinny child laborer. He asked me, is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? 12 years ago, a child mother from the streets of Colombia asked me this. I have never had a dream. Can my child have one? Friends, all the great religions teach us to care for our children. Jesus said, let the children come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them. The Holy Quran says, kill not your children because of poverty. Friends, there is no greater violence than to deny the dreams of our children. The author here beautifully he has explained. क्या एक बार वह कहाँ गया? हिमालयास के टूवर्ड्स गया. वहाँ पर एक उसे छोटा सा बच्चा मिला. उसने क्या बोला कि क्या इतनी बड़ी दुनिया में क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको कोई खिलौने या कोई किताब दे सके, परंतु उसके बदले उसके हाथ में गन थमा दी गई है. 12 साल पहले ये जो ऑथर हैं ये कहाँ गए थे? कोलंबिया गए. उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात बोली. वहाँ पर एक बच्चे की पुअर मदर ने पूछा, क्या ऐसा कोई भी नहीं हो सकता, कहीं नहीं ऐसा हो सकता कि अगर उसने कोई सपने नहीं देखे तो वो भी उसका बच्चा भी ना देखेगा.
हमारे को हर धर्म, हर एक रिलीजन, व्हाट इट टीचेस अस दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। चाहे वो जीसस है, कुरान है, हमारा हिंदू रिलीजन है, एवरी रिलीजन teaches us the genderness and the kindness for what, for the children. But unfortunately क्या हम justified हैं? जो चीज़ हम चाहें हम खुद लेते हैं। कभी हमने इसके लिए विचार किया है बेटा कि हमारे जो पुअर पीपल हैं, जो हमारे पुअर चिल्ड्रन हैं, डू दे ऑल्सो गेट द सेम थिंग्स? दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल देयर सच राइट्स। उनको उनके बचपन के राइट से उनको डिप्राइव किया हुआ है। आई रेफर टू एक्सेप्ट दैट ऑल द टेम्पल्स इन मॉस्क एंड चर्चेस एंड प्रेयर हाउसेस हैव नो प्लेस फॉर द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं वहाँ पर हमारे जो पुअर चिल्ड्रन हैं, जिनको अब का मजबूरी, कुछ तो ऑर्फन हैं, दे हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, बट सम दे आर वर्किंग इन पॉवर्टी टू फीड देयर फैमिलीज़, कि उनको काम करना पड़ता है किसके लिए? अपने परिवारों के लिए, कि थोड़ा बहुत वो भी अर्न करें। आइदर दे go and work with some tea stall, या दे वर्क एज द चाइल्ड लेबर रैग पिकर्स, दे और गार्बेज से सारा दे पिक आउट द गोल्ड। दैट गोल्ड इज नॉट द गोल्ड एक्चुअली, दे पिक आउट द गार्बेज देन दे सेल आउट। जो वो गार्बेज में से जिसे वो लोग सोना समझते हैं, वो तो सारा क्या है? जंक है, जो वो जाके बेचकर अपनी क्या करते हैं? अपनी लिए, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा सपोर्ट बनते हैं। बट डू दे डोंट हैव द राइट्स फॉर देयर चाइल्डहुड, फॉर देयर ड्रीम्स? अगर उनके पास, और हमने ये सारे राइट्स उनसे डिप्राइव कर लिए हैं। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड constitutions, police and judges are unable to protect our children. I refuse to accept the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom. आज ये जो हमारे नरेटर हैं वो क्या कहते हैं कि कोई भी संविधान, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई पुलिस है, कोई जज है, ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि उनके पास कोई ऐसा लॉ नहीं है या कोई ऐसा उनके पास कोई समाधान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ का कोई उनके पास कंक्लूजन नहीं है दैट दीज चिल्ड्रन कैन ऑल्सो गेट देयर राइट्स। Here he says, it's a phrase that's quest that the slavery can ever be stronger than the quest for freedom. Slavery जो एक हम किसी न किसी काम में गुलामी किसे हम कहें, क्वेस्ट मीन्स एक प्यास, एक थर्स्ट, किसकी? आज़ादी की से के लिए नहीं है। जो गुलामी है क्या वो आज़ादी से के ऊपर हावी हुई है? नहीं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, माई ओनली एम इन लाइफ इज़ दैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी अ चाइल्ड, free to grow and develop, free to eat, sleep and see daylight, free to laugh and cry, free to play and learn, free to go to school and above all, free to dream. Here it is कि उन्होंने कहा, क्या कहा नरेटर ने? कि हर बच्चे को एक पूरा का पूरा इस चीज़ का नेचर ने अधिकार दिया है। किस चीज़ के लिए? दैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री, हर एक बच्चा बिल्कुल फ्री है, वो खेल सकता है, वो ग्रो करे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में, वो फ्रीली खाए, कभी उसको किसी खाने से, सोने से या कोई एक रोशनी से, ही और शी शुड नॉट बी डिप्राइव्ड, ही और शी शुड बी फ्री टू लाफ एंड क्राई। क्राई हेयर इज़ टू शो इट्स इमोशंस, अपने सारे भाव को खुलकर अपने सबके आगे व्यक्त कर सके। फ्री टू प्ले एंड लर्न, बिल्कुल उसके पास एक फ्रीडम हो जहाँ वो खेल सके
अच्छी अच्छी बातें लर्न कर सके, उसके पास भी एजुकेशन का राइट है। फ्री टू गो टू स्कूल एंड अबव ऑल, कि हर एक बच्चा जो सोसाइटी का है हमारे, जो वो कोई रैग पिकर है या कोई टी स्टॉल पे काम कर रहा है या कहीं कुछ भी किसी प्रकार से भी कहीं काम कर रहा है, कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी मदर्स के साथ एज अ डोमेस्टिक हेल्पर काम करते हैं, अपनी मदर के साथ क्या करते हैं, डोमेस्टिक घरों में काम करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उनके पास भी एजुकेशन का, खेलने का, डेवलप होने का, ग्रो होने का सब अधिकार है। आई हैव द privilege of working with many courageous people who have the same aim. We have never given up against any threat or attack, and we never will. We have made progress in the last couple of decades, but let us make no mistake, great challenges still remain. Friends, the biggest challenge of biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. Rights, security, hope can only be restored through education. Young people like Malala, I have started calling her my daughter Malala, not just Malala. So my daughter Malala and other daughters including Kayant, in fact 2 Kayants and Shazia, and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism, and courage over fear. Here it is, the narrator tries to explain us that there he is not amongst those जो गिव अप कर दें। उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी मूवमेंट में ज्वाइन करे हुए हैं कि उन्होंने अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है। हेयर इट इज़ कि आज ये जितने ऑर्फन हैं या जो इन द ग्रिप ऑफ प्रेजुडिस और एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, हेयर नरेटर सेज दे आर ऑल हिज डॉटर्स एंड सन्स, वो सारे उसके बच्चे हैं। फॉर दिस अभी बहुत कुछ हो गया है। डिकेड्स मतलब 10 ईयर्स का 1 डिकेड होता है कि पिछले कितने सालों में बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं, लेकिन अभी ये हमने अपना जो गोल है, एम है लाइफ का, वी हैव नॉट अचीव्ड एज येट। देयर वी हैव टू स्टिल गो अहेड। देयर आर मैनी सच पीपल, many such organizations, those who are just sharing the same motive. बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो अपनी इच्छा से इन सब के लिए काम कर रही हैं, और हमें we are aware of such many. They are just like UNICEF, CRY and Gunj. वो क्या करती हैं, वो डोनेशन मांगती हैं आप लोगों से, आपसे टॉयज़, आपसे बुक्स, आपके कपड़े, ये सब मांगकर किसी एक बच्चे का एक अच्छा दिन बनाना चाहती हैं। एंड दिस इज़ द ट्रू सर्विस ऑफ गॉड। यही एक भगवान की ट्रू सर्विस है। दिस इज़ रॉन्ग। वी विल गो टू टेम्पल्स एंड विल गो टू चर्च एंड वहाँ जाके हम क्या करेंगे, प्रीस्ट को देंगे, पंडितों को देंगे। हेयर वी स्टैंड रॉन्ग। It is always better to feed someone with food and education. किसी न किसी का हम क्या करें, पेट और मन भरें, किससे, विद्या से और खाने से, भोजन से। This is for the youngsters, जो आप जैसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो उनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमने always we have to do one good deed. We have to serve the poor and the people who are they are deprived of this. The solutions are
emerging, but these solutions cannot be found in the deliberations in conferences alone, and cannot be found in prescriptions from a distance. Prescriptions from a distance. You may ask that what can one person do? I would recall a story of my childhood. A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including the lion, the king of forest. Suddenly he saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, "What are you doing?" To the lion's surprise, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." The lion laughed and said, "Wow, can you do it keeping just one drop of water in your beak?" The bird was adamant and said, "I am doing my bit." Here it is कि जो ऑथर है वो क्या समझाना चाहता है कि कॉन्फ्रेंसेस करके क्या करो, खड़े होकर डिबेट्स दे के ऐसी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके हम लोग अपना गोल नहीं कभी फुलफ़िल करेंगे। इनको हम किस तरह से कर सकते हैं? उन्होंने अपने चाइल्डहुड का एक इंसिडेंट सुनाया, एक कहानी बताई। एक बार जंगल में आग लग जाती है, सारे एनिमल्स भागने शुरू कर देते हैं और वहाँ का जो किंग ऑफ जंगल है, लॉयन ऑल्सो रश्ड आउट। सडनली देयर वॉज अ बर्ड, एक पक्षी था जो वापस कहाँ फॉरेस्ट में जा रहा था अपनी बीक में पानी लेके। जो जंगल का राजा था वो हंस के बोला, क्या हंस के बोला कि तुम्हारे एक छोटे से ड्रॉप ऑफ वाटर से क्या वो आग ख़त्म हो जाएगी? तो उस पक्षी ने आगे से दिया, आई एम ट्राइंग टू डू माई बिट, मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आई एम डूइंग ऑफ माई बिट। सो here what we learn is that every person in this world, on this earth I may say, he should do his or her own bit। अपने अपने हिस्से का हमें जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। The lion laughed, said, "Wow, can you do it keeping just one drop of water in your beak?" The bird was adamant and said, "I am doing my bit." Friends, we live in an age of rapid globalization. We are connected to high speed internet. We exchange our goods and services in one single global market. Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. But there is one serious disconnect, and that is lack of compassion. Let us inculcate and transform these individual compassion into a global compassion. Let us globalize compassion. Here the author tries to explain us, क्या हमें समझाना चाहते हैं कि हम तो हमारे पास इतने, हम अब वास्ट वर्ल्ड में हैं, इंटरनेट सर्विसेज है हमारे पास, हम सब कुछ अपना एक्सचेंज करते हैं ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। एक हम कंपैशन, कि हम जो एक कंपैशन इज एक जो कंपल्सरी, जो हम आपस में करना चाहते हैं, हम अगर अपने थॉट्स को भी एक्सचेंज करें तो हमारा जो ये अधूरा काम है वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। महात्मा गांधी सेड, इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन द वर्ल्ड we shall have to begin with children. I humbly add, let us unite the world through compassion for our children. Here author tells us Mahatma Gandhi. Who is Mahatma Gandhi? He is father of the our nation. उन्होंने क्या बताया कि अगर
हमें रियल शांति चाहिए, हमें पूरे संसार में पीस चाहिए। तो आई हम्बली ऐड, लेट अस यूनाइट वर्ल्ड थ्रू कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए हम सबको इकट्ठा करें एक प्लेटफॉर्म पर। एक्सक्यूज मी। I ask, whose children are they who stitch footballs yet have never played with one? Whose children are they who harvest coca yet have never tasted chocolate? Whose children are they who are dying of Ebola? Whose children are they who are kidnapped and held hostages? They are all our children. I remember an 8-year-old girl we rescued from international forced labor from stone quarries. When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, "Why did you not come earlier?" See, here the author, he is just trying to touch the sensitive part of the society. वह सोसाइटी के उस पॉइंट को टच करके क्या समझा रहे हैं हमको कि वो कौन से बच्चे हैं जो क्या करते हैं, फुटबॉल स्टिच करते हैं, मीन्स दे आर कॉबलर्स but they have never played with the football. Children are harvesting coca but they have never tasted chocolate. Once this man rescued one girl जो इंटरनेशनल लेवल पर किसी रॉन्ग people के हाथ में जाके she was kidnapped. Later when she was rescued, that girl asked, "Where were you earlier?" Everyone has the same pain. Everyone can bear the same happiness as well as the pain. Rich and poor, haves and have-nots, stands nowhere in the pain. जो दर्द है बेटे वो सब के लिए इक्वल है, चाहे कोई अमीर है कोई गरीब है, हैव्स है मतलब जिनके पास है, हैव नॉट्स जिनके पास नहीं है, जो पॉवर्टी लाइन में है. हर एंगर क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी and has the power to shake whole world. Children are questioning our inaction and watching our actions. We need collective action with sense of urgency. Every single minute matters. Every single child matters. Every single childhood matters. Therefore, I challenge the positivity and surroundings of our children. I challenge this culture of silence and the culture of passivity. This culture of naturality. Here the author tries to say that the author tries to say that we have to understand the today's urgency, that we have to work for the children, those who are deprived of all this. I am today and you are tomorrow. This is कि जो ऑथर क्या कहता है, मैं आज हूँ तो बेटा कल के लिए तुम हो. तभी we say today's children are tomorrow's leaders, ambitious, and we must have the will. We must keep our promises. Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy my age sitting outside the gate of my school. Asked my teacher why he is working outside, why he is not with us in the school. This man, the author, he till dates remember कि around 50 years back when he used to go to school, तब उस टाइम पर बाहर एक कॉबलर बैठते थे और उसने क्वेश्चन टीचर से किया था कि मैं बाहर क्यों हूँ और ये
अंदर क्यों है, कि उसको पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया। दिस इज़ समथिंग अ शेम फॉर द नेशन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। जो जितने भी कंट्रीज़, वो ये ना कि हम डेवलपिंग हैं, हम अंडर डेवलप्ड हैं, बट दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ शेम फॉर द नेशन। उस देश के लिए ये एक शर्मिंदगी की बात है कि वो अपने नागरिकों को, बच्चों को, जिनको हम कल का नेता कहते हैं, उनको वह एक प्रॉपर स्कूलिंग की एजुकेशन और एक खाना नहीं दे पा रहे। I am today and you are today. Today it is time for every child to have right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity. Today, beyond the darkness, I see the smiling faces of our children in the blinking stars. उन्होंने कहा, क्या आज का दिन हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए ये है कि हम क्या करें, अपने आप में एक हम डिटर्मिन्ड हों कि हमने हर एक को राइट्स देने हैं। और जो इतना अंधकार जिसे हम कहते हैं, लेकिन फिर भी हंसते हुए चेहरे उनको बच्चों के आसमान में तारों की तरह दिख रहे हैं। एवरी ट्री एंड माउंटेन आई सी आर आर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी। कि हमें क्या करना है, हर बच्चा, डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा हो रहा है। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। टुडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग्स एंड नेल्सन मंडेला कॉलिंग ऑन अस। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ की तरह सोचने लग गए हैं। दिस इज़ कि जितने NGOs हैं जो वॉलंटरली, जो अपने डिज़ायर से हेल्प करना चाहते हैं, वो सारे के सारे आगे आके क्या कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए, इनके लिए हिम्मत करके कुछ ना कुछ उनको सर्व करके एक उनकी लाइफ को अपलिफ्ट कर रहे हैं। आई कॉल अपॉन यू इन दिस room and people all across the world. I call for march from explanation to education. I call for a march for poverty to prosperity, a march from slavery to liberty, and a march from violence to peace. Here author says, whosoever is sitting there, वो सारे के सारे आज मार्च मतलब एक आगे के लिए कदम उठाएं। किसके लिए? इस पावर्टी को नष्ट करने के लिए, स्लेवरी जो गुलामी है, जो सारे रॉन्ग एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में, उन सब को ख़त्म करके एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएं, स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड बनाएं, जहाँ हर बच्चे को इक्वल राइट्स मिले और उनका चाइल्डहुड शुड ऑल्सो ब्लूम।